K2 ist ein Thema, ein wichtiges Thema. Und wir brauchen K2 für Wünsche. We need K2 for wishes. आपकी इच्छा, you want to express. Zum Beispiel, wenn es ein Wunsch ist, dann ist das keine Realität. अगर कोई चीज अभी विश है, इसका मतलब है इट इज नॉट द ट्रूथ. वुंश, वुंश इज विश, प्लुरल Wünsche. Das nicht die Realität ist. Oder manchmal brauchen Sie das auch für Höflichkeit und Ratschläge. Also das machen wir später. Aber einmal Wünsche. You use K2 to express your wishes. These wishes can be real or unreal. Reale Wünsche, real oder unreal. The wish can be real or unreal. Real means which is possible, or unreal which is not possible. Possible or not possible मतलब wir sind Menschen, wir können nicht, also Affe oder Schlange werden. हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग सांप बघेरा तो नहीं बन सकते, लेकिन कोई विश कर ले तो पूरी तो नहीं होगी शायद. Ich bin Lehrer, I am teacher, ich habe Geld, I have money, so das ist vielleicht die Realität. मैं टीचर हूं, मेरे पास पैसे हैं. रियलिटेट या zum Beispiel. या फिर कोई बोले काश मैं टीचर बन जाऊं. Ein Student kann auch sowas denken, daran Gedanken machen. Means if someone is a student and the person wishes to become a teacher, so that is a wish then. Und K2 bedeutet Wünsche. Und wie ist das normalerweise? Ich bin Lehrer, I am a teacher. Das ist die Realität. Verb ist hier sein. The verb is sein. If I say ich habe Geld, ich habe einen Kuli, ich habe ein Haus, das ist die Realität. Und hier Verb ist haben. Aber für K2 sein, for K2 sein becomes wären. Und haben becomes hätten. These are the forms of K2. Every verb has K2 form. Every verb. But we need right now only the two. Sein in K2 und haben in K2. We already know sein haben, but this is the K2 form of these two verbs. And then we should know how we can conjugate them. Ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie und sie. इन्हीं के साथ यूज करेंगे अपन इनको. ऑफ कोर्स सब्जेक्ट तो यही हो सकता है, और मे बी सम नेम. Wären will be then ich wäre, du wärest, sie wäre, wir wären, wäret, wären und wären.
wäret, wären and wären. So whenever you see wären or hätten, you should think of Katswai. It could be a wish. कोई अगर ये यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कोई अपने विश को प्रकट कर रहा है कि I want that, or I would like to have something, or I would like to become. So wäre, and for haben, this is the normal verb and we need Katswai form. So ich hätte, du hättest, sie hätte und hätten, hier auch hätten, hier hätten, nochmals, und hättet. Das ist dann Katswai form. I want to become something, someone, I want to have something. So this is the reality, but Katswai is not in this context. If you talk about wishes, it is not Sir, the reality. Yeah. Sir, Katswai or Hatton, for second person. Yeah, Is it Hatton or Hattet? Hatted or sorry, Hatton? Ear. Ear hatted. It is hatted. Hatted. Ear hatted. Yeah, danke. Ear hatted. So these sentence we will change into Katswai form. Then the reality is ich habe, but if it is a wish, I will say ich hätte Geld. In Katswai, ich hätte Geld. Here in Katswai, ich wäre Lehrer. I wish I become a teacher. To be, होना. काश हमारे पास एक घर हो, हमारे पास, for plural I am saying, wir hätten ein Haus, we would like to have, wir hätten ein Haus in Jaipur. So haben becomes hätten for wir. Yes, wir hätten ein Haus. Du wärst Affe, काश तुम बंदर बन जाओ. Du hättest den Kuli. Du oder ich oder er, काश मैं अभी जर्मनी में हूं. So ich bin in Jaipur. Das ist die Realität. रियलिटी तो ये है कि मैं जयपुर में हूं, लेकिन इच्छा तो हो सकती है भाई काश मैं जर्मनी में हूं. तो टू बी इज द वर्ब. Ich wäre in Deutschland. काश मैं तू बन जाऊं. Ich wäre du. Wäre is nominative because sein is nominative. So after this verb nominative case will be there. If I say काश मैं तू हो जाऊं, Ich wäre du. काश मैं तू हो जाऊं, तो दिस इज नॉमिनेटिव ओनली. सो डू. Ich wäre in Deutschland. Ich wäre in Deutschland. काश तुम यहां हो, तुम जर्मनी में हो, काश तुम जयपुर में हो. Du wärest in Jaipur. तो डू के हिसाब से कंजुगेट कर देंगे. Aber wir brauchen Katswai form. पंकज,
vielleicht alle sollten also träumen, कुछ ड्रीम देखो अभी अभी, काश ये हो जाए. We are saying do Everest in Deutschland or do Everest in Jaipur. But we want to say I wish you are in Jaipur. This Or is I wish you are in Germany. this is understood. Okay. This is understood because we are using this for a dream only. This is for a wish. But is it the sentence would it mean that I wish you are in Jaipur or would it mean you wish you are in Jaipur? No, no, no. Do Everest. काश तुम जयपुर में हो. तो कौन? विश तो मैं ही कर रहा हूं. Okay. अगर वो खुद करेगा तो वो खुद बोलेगा इश वेरे इन जयपुर. Okay. Klar? So, ich hätte ein Glas heißen Tee. So, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आप पाना चाह सकते हो, कुछ भी आप बनना चाह सकते हो. मान लो कोई आप में से अभी सोच ले काश मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो जाइन वर्ब आएगी. Ich bin nicht Premierminister. Ich wäre Premierminister. Ich bin nicht Student. Ich wäre Student. ड्रीम जो है वो तभी है जब आप वो हकीकत नहीं है. समझ रहे हो? तुम्हारे बाल नहीं है तो तुम सोच सकते हो काश मेरे बाल हों. जब वो बाल नहीं है देन यू ड्रीम. अब मेरे तो हैं. सो ich hätte Haare. अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं सोचूंगा ich hätte Geld. तुम्हारे पास तो दोस्त ही नहीं है. Du hättest auch Freunde. So everyone will make at least one or two sentences. Ich wäre, ich hätte. Ich wäre nach Deutschland fliegen. No, das ist false. इसमें हम लोग वर्ब यूज नहीं करेंगे, उसका आपको अलग से बताऊंगा. फ्लीगन वगैरह यूज नहीं करेंगे. अभी केवल यूज इतना ही करना है. Ich wäre, ich hätte. काश मैं बनूं, मेरे पास होए. wären जब आप यूज कर रहे हो तो वर्ब यूज नहीं करना है हमको. हैटन जब आप यूज कर रहे हो तो हम लोग वर्ब को यूज नहीं करेंगे जैसे अभी आपने कर दिया. इसके बाद में आप नाउन यूज करो. ich hätte, ich wäre. Ich hätte जेब में, काश तुम्हारी जेब में माइकल जैक्सन हो. Ich hätte. तो हैटे का मतलब तो तू है भी है. Very sorry. वेरे आएगा कि आप कोई बनना चाहते हो कुछ. सो इस वेरे माइकल जैक्सन. सो वेरे राइट जाइन वर्ब है ना. Ich wäre celebrity. इस वेरे प्रोमिनेंट. सेलिब्रिटी को बोलते हैं प्रोमिनेंट. काश मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं. इस वेरे प्रोमिनेंट. या अंतेश. Ich hätte Auto. इस हैटे ऑटो. काश मेरे पास कार हो. ओके तथास्तु. सो आप लोग अपने मन का बोलो. सच भी हो सकता है. Ich hätte Job. Ich hätte einen Job. काश मेरे पास एक जॉब हो. ओके तथास्तु. या बिटे शॉन. जागन जी. Ich wäre Billionär. Ich wäre Millionär. Okay klar. Wunderbar. तथास्तु. बिटे Wir wären Party treffen. ट्रेफन कहां से आ गए इसमें? Sorry, वर्ब नहीं आती. वर्ब नहीं लगाना इसमें. वो सिखा दूंगा वर्ब वाला भी. अभी जितना सिखाया उसकी बनाओ. सूरज, पंकज, जागन जी एटवास. आप लोग सेंटेंस बनाओगे, चौंच खोलोगे तो ही आएगी भाई जर्मन. Ich hätte iPhone Ich 13. hätte Excel. Ich hätte iPhone. Okay, was sagt Pankaj? I was thinking a word for a bird. Bird is Vogel. 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 Ich war a Vogel. Ich wäre Vogel. काश पक्षी बन जाऊं. Okay. Ich wäre Vogel. Vogel. Bird. Wir hätten Sorry, ich hatte lange. Yeah. Abhishek, you wanted to say something?
Ja. Wir hätten ein Party. Wir hätten ein Party. Eine Party. Ja, warum nicht? Ich Okay. wäre Actor. Ich wäre, Actor. okay, Schauspieler. Actor बन जाऊं हूँ ich wäre Schauspieler beziehungsweise Mein Freund- Schauspielerin na? Mein Freund hätte ein Fahrrad. mein Freund hätte ein Fahrrad काश मेरा दोस्त जो है वो कार से साइकिल पे आ जाए ओके या फिर उसके पास साइकिल आ जाए मतलब कार से नहीं साइकिल पे आ जाए साइकिल आ जाए उसके पास ओके mein Freund hätte ein Fahrrad richtig das hast du klar P Hello. ja bitte Suraj Is Soler a footballer? ich wäre Fußballer okay perfect ich wäre Fußballer mhm. Is Hart a Roman Busher? ich hätte Romane Roman Busher. okay Roman Busher. या ich hätte Romane वो अंडरस्टूड ये वो बुक ही होती है ना Okay. सो रोमाने ich hätte Romane नॉवेल्स हो मेरे पास रोमाने mhm. Ich wäre Singer. ich wäre Sänger काश मैं सिंगर बन जाऊं ich wäre Sänger ich hätte eine Freundin काश मेरी एक गर्लफ्रेंड हो ich Entschuldigung nein also ich hätte eine Kamera ja okay Ich wäre Spieler. ich noch einmal Wäre Spieler. ich wäre Spieler. Spieler meinst du Sportler meinst du okay Sportler okay Ich wäre Arzt ich wäre Arzt und ich hatte eine Wohnung. ich hätte eine Wohnung ich hätte eine Wohnung klar wo hättest du dann eine Wohnung ich hätte eine Wohnung in Jaipur und du hättest eine Ich- Wohnung In Germany. In Deutschland? Deutschland. ja warum nicht das hast du ja gut jetzt schon ja natürlich das kann auch die Wahrheit sein so hätte und wäre ich hätte Kinder जिसके पास बच्चे नहीं है वो सोचता है ich hätte Kinder ich wäre verheiratet ich wäre Single ich wäre in Japan also das kann alles sein das ist nur ein Traum na ja it's a dream so ich hätte und ich wäre klar aber wäre ohne wäre hätte ohne wäre bis jetzt haben wir daran gedacht das ist dann Ich wäre Pirat. ich wäre Pilot या I Pirat. wish Pirat. कि मैं पायलट बन जाऊं ओके अपने मन का जो भी है बोल दो चांस है आपके पास अभी तो Ich wäre Degan. ich wäre du काश मैं तू बन जाऊं ich hätte keine Prüfung मेरी एग्जाम है खास एग्जाम नहीं हूं ich hätte keine Prüfung ich hätte aber einen Job लेकिन मेरे पास एक जॉब तो हो ich hätte Aladdin Lampe ich hätte Lampe von Aladdin का चिराग मिले मुझे ich bräuchte dann nicht mehr. Ich wäre Chef bei meinem Büro. Okay, ich wäre Chef in meinem Büro. Okay, klar, richtig. Und Ich hatte B1, B2 Certificate. ich hätte B1 und B2 Zertifikate. Das hast du. Okay, alles klar. Sehr schön, Freunde. Also, das brauchen wir alles. Sie wäre Hound. हाँ? जी wären Hund. काश आप कुत्ते बन जाएं और दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। या ओके
Ich hätte auch einen Hund. Wir wären dann zusammen. Okay. तो फिर हम दोनों ही बन जाएं और साथ में घूमे. Klar. Das ist dann wären und hätten. Ich hätte noch eine Chance. काश मेरे को एक चांस और मिले. हम लोग कभी कभी पहली बार में ध्यान नहीं देते. Ich hätte noch eine Chance. So wären और hätten में आप समझ गए कि जहां भी जाइन वर्ब आ रही थी वहां हमने wären कर दिया, और जहां भी haben वर्ब आ रही थी वहां हमने hätten कर दिया. कुछ नहीं करना. जर्मन इजी है. Deutsch ist einfach. आपको केवल ये लगाना है और वही पहले वाले ही सेंटेंस विश में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. आई हैव ए पेन. ich habe einen Kuli. और काश मेरे पास पेन हो तो ich hätte einen Kuli. कुछ भी नहीं करना. ये आकुजाटिव है, आपको पता है. haben आकुजाटिव है तो hätten भी आकुजाटिव है ऑफ कोर्स. जाइन नॉमिनेटिव है तो ये भी नॉमिनेटिव है. कुछ नहीं करना. आपको केवल ये दो वर्ब लर्न करनी है. हो गया काचवाई ना. दूसरे पॉइंट पे आते हैं. कभी कभी जैसे मान लो मैं ये बन जाऊं, मेरे पास ये हो, उसी से जिंदगी नहीं चलती, और भी वर्ब काम में लेनी पड़ती है. जैसे अभी एक ने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं जर्मनी उड़ जाऊं, तो उड़ना फ्लीगन, तो फ्लीगन तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. इनके साथ तो अपन वर्ब यूज भी नहीं करते. उसके लिए फिर हमारे पास एक और चीज है व्यूर्डन. ओरिजिनल वर्ब तो होती है वेर्डन. उसके चक्कर में ज्यादा सोचना नहीं है कि ये क्या हो रहा है. आपको बस इतना सा सोचना है कि कोई भी एक वर्ब थी लेकिन हमको उसका काचवाई यूज करना है. व्यूर्डन. व्यूर्डन काचवाई फॉर्म है वेर्डन की, जैसे हाबन की hätte, जाइन की wäre. तो ich würde, du würdest, sie würde, würde, und hier würden und sie würden, also beide würden, und hier auch würden, wir würden, und hier würdet. So ich würde, du würdest. Das brauchen wir für ein Verb. Other than sein or haben, if you want to use any verb, इन दो के अलावा आपको कोई भी तीसरी वर्ब यूज करनी है, जैसे काउफन. अब कोई बोले कि काश मैं जयपुर में हूं. अरे हूं तो करूं क्या? कुछ खरीदूं, कुछ खाऊं, कुछ पीऊं. तो खाना, पीना, सोना, हंसना, ये कुछ भी वर्ब आपको यूज करनी है. देन यू विल यूज व्यूर्डन प्लस इंफिनिटिव हर बार. Ich würde nach Deutschland fliegen. werde की जगह würde करना है. व्यूर्डन प्लस वर्ब इन इंफिनिटिव फॉर्म. Ich würde nach Deutschland fliegen. फ्लीगन आ गई तो nach Deutschland. पहले क्या करते अपन कि मैं जर्मनी जा रहा हूं, उड़ रहा हूं जर्मनी के लिए, तो व्यूर्डे की जगह आप वेल्डे तो कर ही रहे थे. कुछ नहीं करना, केवल फॉर्म बदल देनी है. Ich würde nach Deutschland fliegen. Ich würde ein Fahrrad kaufen. Ich würde meine Eltern besuchen. काश मैं मेरे पापा वगैरह, पापा मम्मा से मिलूं, उनको विजिट करूं. तो मिलूं बोल दिया मैंने तो treffen आ जाएगा. Ich würde mit meinen Eltern treffen. Ich würde mich mit meinen Eltern treffen. अगर आपको रिफ्लेक्सिव यूज करनी है तो, या ich würde meine Eltern treffen. काश मैं घूमने जाऊं, काश मैं तुम्हारे साथ आऊं. Ich würde mitkommen. Ich würde spazieren gehen. Okay, so your wishes. आपके विश आप जानो, बोलो. जैसे अभी बोला वैसे कोई भी वर्ब यूज करो.
Wir würden in der Party treffen. हम लोग पार्टी में मिल जाएं. काश. Hast du? Wir würden in der Party treffen. Okay. Und? Ja bitte. Sagen Sie. Was würden Sie machen? Was? सर ये वुडन अक्यूजेटिव है कि नॉमिनेटिव है? ये तो उस बात पे डिपेंड करेगा आगे क्या आ रहा है. जैसे मान लो हेल्फन आ गई तो हेल्फन तो डाटिव है. ये तो अपने आप में कुछ है ही नहीं ना. आप तो ये मान के चलो इसके बाद में कौन सी वर्ब आ रही है. जैसे मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं. मेरा मन तो है तो इश व्यूडे डियर हेल्फन, क्योंकि जो हेल्फन है वो डाटिव है तो उसके हिसाब से इधर केस चलेगा. ओके. इश व्यूडे डिश बेजूखन, ये बेजूखन की वजह से डिश हो रहा है. ओके. Ich würde einen Flugzeug kaufen. Aha, das hast du. Ja. Dann würdest du mit diesem Flugzeug nach Indien fliegen. Exakt. Ja, genau. Also, so würde und fliegen. Würde und kaufen. Sehr gut. Next. अगर कोई बोले ich würde noch ein Handy haben, तो नहीं करना है. haben और sein के साथ ये जो इंफिनिटिव है ये wäre और hätte, इनके साथ इंफिनिटिव नहीं लगाना है. जब भी आपको कोई वर्ब लगानी हो तो würde प्लस इंफिनिटिव होगा, लेकिन würde के बाद में इंफिनिटिव haben और sein भी मत लगा देना. जैसे कोई बोले ich würde Schokoladen haben, कोई ऐसे कर दे सपोज. आप देखो कि लास्ट में तो मैन वर्ब लगानी है तो haben ही लगा देता हूं. मन कर सकता है आपका. सो ich würde Schokolade haben की जगह सीधा ही बोल देना ich hätte Schokolade. वहां इन दो के साथ würde का कॉम्बिनेशन नहीं है, मेल नहीं है. बट एनी अदर वर्ब mit würde können Sie sagen. Bitte schon. Einige Sätze. Ja. Suraj, bitte. Ist wurde der Mount Everest besteigen. Ich würde Mount Everest. Okay. Besteigen. Alles klar. Richtig. Und ich würde mitkommen. मैं भी साथ आना चाहूंगा. würde और mitkommen आ गई ना वर्ब, तो ich würde mitkommen. Ich würde mitmachen. I would like to join you. Next. Ich würde Urlaub machen. Ich würde Urlaub machen. Yes. machen आ गया तो ich würde Urlaub machen. Yes. Infinitive लास्ट में आएगी. Ich würde 2 BMWs kaufen. 2 BMW खरीदना चाहूंगा. So ich würde 2 BMWs kaufen. Kaufen वर्ब लास्ट में आ गई. मेरा तो मन करे शेर से भिड़ जाऊं, शेर से भी भिड़ जाऊं. Ich würde also gegen den Löwen also kämpfen. Ja, kommen. Ja. Ich würde Music Concert hören. Ich würde Musikkonzert hören. Ja. Klar. würde hören. So हर बार अपने विश को एक्सप्रेस करने के लिए ये 3 ही वर्ब काफी है, हमको और कुछ नहीं चाहिए. जब भी जाइन वर्ब होगी तो हम लोग वेरन यूज कर लेंगे. जब भी हाबन वर्ब होगी तो हम लोग हैटन यूज कर लेंगे. और जब भी कोई थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म मतलब थर्ड वर्ब होगी, तो हम लोग हर बार würde प्लस इंफिनिटिव. Ich würde dich unterrichten. मैं तुमको, मेरा मन है मैं तुमको पढ़ाऊं, तुम सबको पढ़ाऊं. Ich würde euch unterrichten. आपको पढ़ाऊं. Ich würde Sie unterrichten. सो कोई भी वर्ब, वैसे कात्स्वाई हर वर्ब का ही एग्जिस्ट करता है. हर एक वर्ब का कात्स्वाई फॉर्म होता है, हर वर्ब की कात्स्वाई फॉर्म होती है. आप अगर मान लो कि चेक करोगे नेट वगैरह में, तो जितनी भी वर्ब आपने लर्न करी है उनकी सबकी कात्स्वाई फॉर्म भी है. जैसे हेल्फन है, उसकी कात्स्वाई है हिल्फन, राइट. तो कई कोई अजीब सी है, तो लेकिन हमको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है. वी डोंट नीड देम, क्योंकि जब यूडन हमको आ गया
तो würde के साथ इंफिनिटिव कर देंगे, ich würde dir helfen, तो hilfe किस लिए लर्न करेंगे, सीधा ही हो जाएगा ना. सो प्रियंका, वी आर लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस विश, हमारी विश कैसे एक्सप्रेस करें. सो अब तुम्हारी कोई विश है तो बोल दो. या vielleicht ein oder zwei Sätze noch. Ich würde Deutsch lernen. तो lernen बोलना चाहते हो, काश मैं जर्मन सीख जाऊं, तो ich würde Deutsch lernen लास्ट में आ जाएगी जो भी वर्ब है. ich würde सर क्या बेटा. सर अगर बोलना है कि कोविड should disappear, I wish that COVID disappear from the world. तो आपको डिसअपियर आना चाहिए. बिजाइटिगन का मतलब है उसका खात्मा होना. ओके, तो उसका वर्ड क्या था सर आपने बोला? बिजाइटिगन किसी चीज को एरिडिकेट करना, खत्म करना, या फर्शविंडन का मतलब है डिसअपियर होना. फर्शविंडन, फर्शविंडन एक बार चेक कर लेना वर्ड फर्शविंडन. या बिजाइटिगन का मतलब किसी चीज को खत्म करना और फर्शविंडन का मतलब है डिसअपियर होना. सो कोविड-19 würde verschwinden, गायब हो जाए, काश. Okay. Das wäre möglich. It is possible. wäre बोला मैंने. ist möglich तो रियलिटी होगी, और अभी पता नहीं भाई कितना चलेगा लंबा. Das wäre schon, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाए. तो ये ड्रीम ही तो है हमारा. तो das ist schon मतलब दिस इज गुड, और आप बोलो ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाए, विश है. das wäre schon, ist को ही तो wäre बोल रहे हैं हम लोग. das ist, das wäre, कोई भी विश. Ist das klar? Ja, ich würde am Wochenende nach Hause gehen. मेरी विश है कि मैं वीकेंड पे घर चला जाऊं. बिल्कुल सही है. Ich würde am Wochenende nach Hause gehen. Perfect. Joseph, try one sentence. Ja. Ich würde eine Kaffee trinken. Ich würde einen Kaffee trinken. Perfect. अगर मान लो ich würde meine Lieblingsschauspielerin treffen. समझ गए सेंटेंस? ich würde meine Lieblingsschauspielerin treffen. क्या मतलब है? ध्यान से सुनना एक बार. ich würde meine Lieblingsschauspielerin treffen. I wish I could my actress. Favorite. Okay. My favorite heroine. Favorite actress. Actress. Yeah. तो काश मैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस से मिलूं. ich würde meine Lieblingsschauspielerin treffen. और dann wäre ich nervös. अगर वो सच में आ जाए तो मैं तो नर्वस ही हो जाऊं. ich wäre nervös. शायद ich wäre होगा ना फिर. ich wäre nervös. तो मैं तो नर्वस हो जाऊं. हो सकता है खुशी से बावला हो जाऊं. ich wäre vor Freude verrückt. verrückt मतलब पागल. ich wäre for Freude. Freude मतलब खुशी के मारे. और verrückt, verrückt मतलब crazy. Okay, klar. Sir, I have a daughter, just came in, so we are talking about the past.
No. We are talking about dream. How to express our dream, our wish. Okay, future. Dream, yes. ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए. Yeah. Okay. So there are three situations. First, haben, sein. If you have the verb haben, you will change it into hätten according to the subject. You will change. If the verb is sein, you will change into wären accordingly. And if there is the third verb other than these two, then always würden plus infinitive. Yes, sir. Würden means what, sir? Würden means nothing. Okay. For this is the part of the structure only. You need a infinitive verb. Okay. इसका अलग से कोई मीनिंग नहीं है. जैसे मैं बोलूं कैसा रहे आज अगर हम लोग घूमने चले, हम वी वुड लाइक टू गो टू सिनेमा, काश हम लोग सिनेमा जाएं. वी आर würden ins Kino gehen, right? Okay. वी आर würden ins Kino gehen. gehen वर्ब आ गई ना, gehen आ गई तो जाइन और haben से नहीं कम होगा. gehen अदर देन these two, würden ins Kino gehen. और नॉर्मल सेंटेंस में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ich gehe ins Kino. तो ins Kino तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं. अब gehen को हम लोग würde प्लस इंफिनिटिव से बोलेंगे, wir würden ins Kino gehen. Wir würden ins Kino gehen. काश हम लोग सिनेमा चले. ऐसी बात सुनते ही पंकज खुश हो गया. पंकज ने बोला अरे मजा आ जाए. Das wäre toll. Das wäre means that would be great. would be, be का सेंस है ना यहां जाइन वर्ब. Das wäre toll. Das wäre toll. Yes, sir. So तो सेंटेंस का रिस्पॉन्स भी कास्ट वर्ड में ही जाएगा बेसिकली. वो I तो cannot say das ist toll because das it's not ist, happening. das ist toll means it is the truth. ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया ना. दिस इज ग्रेट Can we say das klingt toll? कह सकते हैं, लेकिन इसमें काशवाई नहीं है. नॉर्मल सेंटेंस तो कहते ही हैं हम लोग. आज मैं जबरदस्ती सारे सेंटेंस काशवाई में बना रहा हूं. मतलब वी विश इट वुड बी नाइस. तो बाकी के अभी तक थे वो तो रहेंगे. Ich unterrichte Deutsch. Ich würde Deutsch unterrichten. काश मैं योगा टीचर बन जाऊं. अभी मैं जर्मन टीचर हूं. प्रॉब्लम क्या है, हम लोग होते हैं और कुछ और बनना चाहते हैं, राइट? Ich bin Deutsch Lehrer. तो जो जर्मन टीचर बनना चाहता है वो बोलेगा Ich wäre Deutsch Lehrer. एक्सपर्ट को क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट को एक्सपर्ट ही बोलते हैं. एक्सपर्ट है ई हो लग जाता है. एक्सपर्ट. जो योगा टीचर बनना चाहता है वो बोलेगा Ich wäre योगा Lehrer. Ich wäre Deutsch एक्सपर्ट है. या Ich wäre Deutsch एक्सपर्ट है. हम बन जाकर वरुण नेक्स्ट. मोहित, इज दैट ओके? अंतेश, क्लास. Yes, sir. इतनी टेंशन लेनी है, मतलब लेनी नहीं है. इतना ही है मामला. उसके अलावा थोड़ा डिटेल में B1 में और आता है, बट आपको अभी और जरूरत ही नहीं है. आपको तो कोई ना कोई वर्ब यूज करनी है. तो आइदर जाइन, haben और इसके अलावा कुछ तीसरी आ गई तो würden प्लस इंफिनिटिव. Das ist dann Katzwei. सर इसके अंदर कोई पास्ट का सीन थोड़ी है. पास्ट की कोई बात नहीं करनी है अपन को. सर B1 में करेंगे. अगर मान लो इस तरह का कुछ Ich werde gestern meine Freund treffen. गेस्टन पूरा पास्ट में कैसे जाओगे? काश मैं दोस्त से मिलूं. कभी कभी रिग्रेट के सेंस में आता है वो. इसके अलावा एक चीज और है, जैसे मैंने अभी क्या बोला इधर, कात्स्वाई का मतलब है कि हम लोग विंश. कात्स्वाई का मतलब है विश, आपका ड्रीम. वो ड्रीम रियल भी हो सकता है और अनरियल भी हो सकता है. अनरियल का मतलब है वो हो सकता है कभी हो ही नहीं, केवल इच्छा ही रह जाए.
जैसे आप में से कोई बोले कि मैं खुद ही मच्छर बन जाऊं, तो मच्छर तुम कभी नहीं बन सकते। या फिर आप बोलोगे मैं घोड़ा बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, जैसे पंकज ने बोला इश वेरे फ्यूगल, इश ब्यूडे फ्लीगन, तो इश ब्यूडे फ्लीगन तो क्या पता फिर भी है, हवाई जहाज से उड़ जाओ और पत्ते वत्ते लगा के क्या पता उड़ ही जाओ आप, लेकिन पक्षी नहीं बन सकते। पक्षी नहीं बन सकते, पक्षी कैसे बनोगे? तो लेकिन कह तो सकते हैं, तो विश में तो सभी आ जाता है। सो द फर्स्ट थिंग विद K2 Wünsche wir wollen uns ausdrücken. The second thing is Höflichkeit und Ratschläge. Höflichkeit und Ratschläge. Höflichkeit का मतलब है कोई चीज को पोलाइटली बोलना हो तो भी K2 से बोलते हैं, पोलाइटली। या फिर Ratschläge किसी को एडवाइस देनी हो तो भी पोलाइटली एडवाइस देनी हो तो। वैसे तो एडवाइस देने के लिए हमारे पास था ही ना जोलन, हम बोलते ही थे डू जोल्स jetzt nach Hause gehen, वो तो कि आप घर जाओ, तुमको घर जाना चाहिए। अरे 12 बजे यार, नहीं पार्टी में आया हूं, अरे पार्टी तो 11 बजे तक की थी, सब गए, तुम भी जाओ महाराज। ओके, सो आप बोलते हो डू जोल्स nach Hause gehen। अब जोल्स तो नॉर्मल है, मोडाल वर्ब, लेकिन K2 में उसकी फॉर्म अलग है। सो जैसे आपने Wünsche का देखा, ऐसे ही आप मोडाल वर्ब भी 2-3 मोडाल वर्ब हैं जो K2 में आपको दिखेंगी। म्यूशन, जोलन, हाँ, क्योनन। म्यूशन, जोलन, क्योनन के आपको पहले पता हो तो आगे नहीं बोलना, उनको लगेगा कि ये तो पढ़ा लिखा है, गलत बैठा लिया अपनी क्लास में, है ना। म्यूशन, जोलन, क्योनन। म्यूशन का ओरिजिनल फॉर्म जो है वो म्यूशन ही है, ये सारे ओरिजिनल फॉर्म ही लिखे हैं मैंने। इसका मीनिंग है मस्ट, हैव टू, मजबूरी, नो चॉइस, यही मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू कम, तुमको आना ही पड़ेगा। सर आज छुट्टी ले लूं क्या? नो, तुमको तो आना पड़ेगा। सर क्यों? छुट्टी तो मैं लूंगा आज। भाई बॉस हो तुम लोगे आज तो। सो आई हैव टू गो, ich muss, I don't have any choice. Sollen is should. Können, can, capacity, ability, informal request, ना? So ये इसका नॉर्मल मीनिंग है, लेकिन इसका K2 फॉर्म क्या होगा? म्यूस्टन, जोल्टन, क्योंटन, जोल्टन, क्योंटन। इसका कंजुगेशन करेंगे हम लोग। इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी। इश म्यूस्टर, ये K2 फॉर्म है, ये K2 फॉर्म है ये वाला। This was the original one. Now we are talking about K2. So ich möchte, du möchtest, möchte तीनों का, möchte, 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 müssten, müsstet, müssten, müssten. Ich sollte, ich sollte, du solltest, er, sie sollte, sollte, sollte. Wir sollten, ihr solltet,
Sollten und sollten. Ich könnte, du könntest, könnte, wir könnten, könntet, könnten und könnten. सो पोलाइटली कुछ बोलना हो आपको तो इसमें पोलाइटली कैसे बोलेंगे? मस्ट में तो कोई चांस ही नहीं है। मान लो आपको कोई बोलता है यू हैव टू कम, तो आना ही पड़ेगा। कोई बॉस ने बोल दिया कि 10 बजे का ऑफिस है टाइम, 10 बजे आ जाया कर। 10 से लेट किया, मैं देख रहा हूं पिछले 20 दिन से लेट आ रहा है रोज। तुमको मैसेज ड्रॉप किया था उसका भी असर नहीं हुआ तुमको, यू हैव टू कम। सो कोई बदतमीज होगा, बदतमीज तो नहीं, नॉर्मली कोई बोलेगा तो वो मिशन बोलेगा, लेकिन पढ़ा हुआ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा सभ्य तरीके से बोलता है। बट सभ्य तरीके से बोलने का मतलब ये नहीं है कि आऊंगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, वो नहीं है। स्टिल द सेम पावर इज देयर। मिशन जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में जनरली दिखता है आपको इस तरह का, तो पूरे रेस्पेक्ट से बोलते हैं, लेकिन बात ऐसी बोलते हैं कि डर लगता है कि पूरे रेस्पेक्ट देके बोलेंगे कि हाँ आप लोग आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे, बट आप थोड़ा लेट आते हो, तो आप एक काम करो, हम लोग 20 दिन और देखेंगे, अगर आप टाइम पे आते हैं तो ठीक है, नहीं फिर 21वें दिन से आपकी छुट्टी है। तो प्यार से बोला, मुस्कुरा के बोला, लेकिन बात तो वही है, 21वें दिन आपकी छुट्टी है, आप भी बोल रहे हैं और छुट्टी भी कर रहे हैं। हाँ, सभ्य तरीके से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? तू तड़ाक से बोलना जरूरी नहीं है, आपकी बात इतनी इफेक्टिव होगी जितनी पहले थी, बट यहां पे ये थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट है, या मान लो आप तो, या फिर थोड़ा सा तरीके से प्यार से बोलने की बात है। ये ह्योफ्लिशकाइट, लाठी भी नहीं टूटे, प्यार से बिल्कुल। रिलेशन क्यों खराब करें? गाली लेके निकालोगे किसी को क्यों? तो रिलेशन बढ़िया तो रखनी चाहिए और प्यार से तो बोलना ही चाहिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सो आप म्यूशन नहीं बोल के अगर म्यूस्टन बोलते हो तो सभ्य लगते हो। ऐसे ही जोलन, डू जोल्स्ट और डू जोल्टिस्ट, इट इज मोर पोलाइट। जहां भी आप जोलन बोलते हो वहां पे जोल्टन बोलना शुरू कर दो। जी जोल्टन या होइटेसु मिए कोमन, आज तो आपको आना ही चाहिए ना। सो आग्रह और पोलाइट स्टेटमेंट है ये। क्योंटन, क्योंटन, ich könnte dir helfen, I could help you। so क्योंटन का क्योंटे कुड हो गया। जहां भी अभी तक आप यूज कर रहे थे वही करोगे, बट ये मोर पोलाइट है, दैट्स इट। सर इसमें ऐसा थोड़ी है भाई विशेष कोई अपन वर्क कर सके। विश तो एक पॉइंट था, पहला पॉइंट विश था, ये पॉइंट अलग है। लाइक पोलाइटली तरीके, ये पोलाइटली कहने की बात है। That's okay? Right? सर मॉडल का क्वेश्चन था, ये मॉडल का पास्ट और ये केस हुआ, इट इज द सेम और नो नो नो, इट्स नॉट द सेम। मोडाल का पास्ट में तो उमलाउट आता ही नहीं। हाँ, उमलाउट नहीं आता है, राइट। हाँ। और जोलन में क्या ये सेम होता है, ये सेम दिखता है, ये ओवरलैपिंग करता ओके है। ओके हाँ, ओके, आई गॉट इट। या और इसमें फिर वो उमलाउट नहीं दिखेगा। ओके ओके, या सो ह्योफ्लिशकाइट, राट्सलेगर का मतलब है, राट्सले का मतलब एडवाइस। एडवाइस कैसे? मान लो मेरा बॉस पूछे मेरे से कि यार 2 दिन की मेरे पास छुट्टी है, हॉलीडेज, मैं क्या करना चाहिए मेरे को, मैं जयपुर आ रहा हूँ, क्या देखूं क्या नहीं देखूं, मुझे पता नहीं कुछ। तो मैं बोलूंगा यू कुड गो टू राजमंदिर और नाहरगढ़, यू कुड गो टू। सो जी क्योंटन राजमंदिर बेजूखन और नाहरगढ़ फ्लाइस्ट। सो क्योंटन एक तरह से, यू कुड एक तरह से, इसमें कई बार ऑप्शंस की भी बात करते हैं, ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, किसी को एडवाइस ही तो दे रहे हो आप।
मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वहां जाना चाहिए, बट मैं ऑप्शन बता रहा हूं। Sie könnten vielleicht morgens Yoga machen oder einen Tee trinken। हाँ? कि यहाँ खाने को क्या है, हमारे को 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे। Wir könnten also Kekse oder vielleicht Brot essen। Wir könnten, we have choice, we could take bread or biscuits, right? We could take, so these are the options। हमको क्या करना चाहिए, कोई एडवाइस पूछे कि सर वो आपने काम बताया था वो तो हो गया, और क्या करना चाहिए। Sie sollten jetzt eine E-Mail schreiben। एडवाइस दे रहे हो आप। जी जोलन और जोल्टन में फर्क नहीं है, बट इतना ही फर्क है कि ये थोड़ा और पोलाइट है, दैट्स इट। मीनिंग इज सेम, बट यू आर सेम विद मोर पोलाइटनेस, या मोर पोलाइटली। Ist das klar? Ist das klar? Ja. So 3 Punkte haben wir genommen: Wünsche, Höflichkeit und Ratschläge. Wish, politeness and advice। इनसे या ये 3 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे अभी। एंड देन इसका कोई पास्ट में भी होता है क्या, कोई और बात भी होती है क्या, सो होती है शायद, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है अभी। क्लास या बेटा। Sir, so the main verb will be at the last in infinitive form, no? In modal verb always, yes, main verb will come at the end, like würden, that's correct. So ich könnte heute studieren kommen, मैं आज आ सकता हूँ। Ich sollte jetzt nach Hause gehen, तो gehen लास्ट में ही जाएगा जैसे नॉर्मल मोडाल में जाता था। Ich sollte jetzt nach Hause gehen, so main verb will come at the end and modal verb on second position as usual। Okay,